Hello and good morning, all. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो तो आज हम लोग the last topic we are going to see amongst the drug acting on ANS autonomic nervous system, that is cholinergic blocking agents. ठीक है, cholinergic blocking agents ये last topic है. We can call it's a fourth topic amongst these cholinergic or ANS. ठीक है, adrenergic के दो टॉपिक देखे थे, cholinergic के दूसरा बाकी था. So this is the second topic from the cholinergic drug and the last topic from ANS, cholinergic blocking agents, or these are also called as anticholinergic. These are also called as we call a parasympatholytics or cholinergic blocking agents. ये सब synonyms, ये terms हम लोग already पढ़ चुके हैं. Drugs that inhibit the action of acetylcholine we call anticholinergics or cholinolytic agents. ठीक है, cholinolytic agents इस तरह का उसको term आते हैं जो already हम लोग discuss कर चुके हैं. Okay, now what about this next classification and all regarding this, the classification and the description of these category of the agents. Excuse me.
Okay, sorry for the interruption. हाँ, तो अभी ये जो होता है पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स, these are affect on the heart, respiratory system. You know what are the effect of the stimulation of the parasympathetic system, and wherever there is a blocking of the parasympathetic system और cholinergic system को block किया गया, क्या effect होते हैं on these tissues we already had discussed. Then particularly अगर ये cholinergic system को inhibit करता है, इसका मतलब it will able to dominate the sympathetic system. और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को अगर वो इनहिबिट करता है तो ये अलाउ करेगा टू डोमिनेट दी पैरेलल सिस्टम दैट वी कॉल अ सिंपैथेटिक सिस्टम. समझ में आ रहा है? अगर ये मतलब आई मीन टू से दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दी कोलिनर्जिक एंड दी एड्रेनर्जिक सिस्टम. अगर कोलिनर्जिक सिस्टम को इनहिबिट किया गया तब जाके सिंपैथेटिक सिस्टम और एड्रेनर्जिक सिस्टम जो है वो डोमिनेट होता है. और अगर सपोज सिंपैथेटिक सिस्टम को अगर हमने इनहिबिट कर दिया दैट केस कोलिनर्जिक सिस्टम जो है वो डोमिनेट हो जाता है. सो इन दैट वे देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दीस टू सिस्टम्स. Like in same way, यहाँ पर जो है ये these drugs are actually cholinergic blocking agents and they are inhibiting the cholinergic system. It means they are allowing to the sympathetic system or adrenergic system to dominate. मतलब वो dominate रहेगा adrenergic system. ठीक है? Now this is the say classification of the cholinergic blocking agents. This is the general formula for these agents. General formula. तो यहाँ पे देखिए जो changing factor रहेगा वो X and Y will be there. ठीक है? Changing factor कौन सा रहेगा? Y and X. Remaining is actually most of the time common. Alkyl group रहेगा, amino group, that's last one जो रहेगा वो amino group है, and R1, R2 these are again alkyl group. ठीक है? और ये जो बीच का जो हमने alkyl जहाँ पे mention किया है, middle one alkyl, ये long chain of alkyl group रह सकता है. So this is in general we are calling, and there are various classes of these cholinergic blocking agents. इसमें हमने बोला कि R1 and R2 are the bulky groups. R1 and R2 are the bulky groups में भी more number of carbon, या bulky group में normally अगर हम लोग लेना चाहे तो उसमें normally हम लोग we are taking a benzene ring जो कि 6 carbon containing normally होता ही होता है. So R we are taking as a benzene group or we are taking a benzene ring, and as results into a bulkier group, and that is required for its pharmacological effect. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं X and Y, the variants are X and Y in the general formula for the drug cholinergic blocking agents. ये जो general formula है इसमें X and Y are variants or they are changing. ठीक है? तो इसमें first जो class रहेगा amongst these cholinergic blocking agents, amino alcohol esters. Amino alcohol ester. So in that case X will be COO and Y will be the C carbon. ठीक है? carbon रहेगा जिसको दो alkyl group R1 R2 attach रहेंगे, that is the Y. And the example of these drugs which belong to the class amino alcohol ester. So that is an atropine, hyoscine and propanthyline. ये जो drugs है ये chemical class amino alcohol ester को belong करते हैं, and this will have this general formula or variables that is X and Y are in this way. COO ये X रहेगा and the carbon will be Y. Next class अगर हम लोग बात करते हैं तो amino alcohol ether. First वाला जो था वो ester था, amino alcohol ester. Now second one is amino alcohol ether, not ester. ether है. ठीक है? ROR we are calling general formula amino alcohol ether. तो इसमें ether के लिए जैसे ROR होता है, देख ROR ये इसमें तो इसके हिसाब से जो X रहेगा वो ऑक्सीजन रहेगा. That will give the ether linkage, ROR वाला linkage वो फॉर्म करेगा. Whereas Y is a carbon, simple carbon रहेगा Y, and the benzotropine is the drug which belongs to this class amino alcohol ether. Next chemical class we are talking about amino alcohol only. ना ester है ना ether है, amino alcohols. So in that case the X will be absent, मतलब directly Y को जो है वो alkyl group attached रहेगा, carbon chain attached रहेगा, and the Y will be that is COH. ठीक है? Y will be the carbon we can say, and to this the one of the hydroxy group will be attached that we call a Y. And bipyridine is a drug which having this which follow this general formula as well as which will be belong to the class amino alcohols. Next amino amides. तो amino amides में भी जो X वाला जो होता है वो absent होता है, only the presence of the Y group, and that is the CONH2 amide group वहाँ पे present होता है in addition to that carbon, and that we call amino amides. Okay, and the drug belonging to this class is called as tropicamide. The example of a drug tropicamide which belongs to the class amino amides. ये tabular form में अगर आप learn करते हो तो it will be easier one. And miscellaneous जो लिया जाएगा, miscellaneous जिसमें जो X रहेगा वो भी नाइट्रोजन, Y will be the nitrogen one. Y will be
नाइट्रोजन, नॉट अ कार्बन। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो कि Y इज अ कार्बन इन मोस्ट ऑफ ऑल फोर फॉर्मल क्लासेस। Y इज अ कार्बन, टू दैट मे बी द OH ग्रुप अटैच, टू दैट CONH2 ग्रुप अटैच। इसका मतलब जो कॉमन जो रहेगा वो कार्बन तो रहेगा Y के केस में, बट इन केस ऑफ द लास्ट वन मिसलेनियस में नाइट्रोजन रहेगा, इंस्टेड ऑफ कार्बन देयर विल बी नाइट्रोजन, और एक्स्ट्रा एब्सेंट ही है। तो दिस सिंपलीफाई करते हुए ये हम लोग क्लास देख रहे हैं, वी हैव एग्जांपल pyrazine and ethopropazine. These are the example of a drug which belong to the class miscellaneous, and in which the Y variable will be the nitrogen. This is the say classification of the anticholinergic drugs or parasympatholytics or cholinergic blocking agents, which include the chemical class amino alcohol esters, amino alcohol ether, amino alcohols, amino amides, and miscellaneous. तो इस तरह से इसका ये जो क्लासिफिकेशन रहेगा इस तरह से रहेगा, that we call a classification of the anticholinergic agents. Now इसके जो uses है, because this topic we have to see in short because it is the least important topic. least important topic है इस पे actually जो जितना पार्ट एग्जाम में पूछा जाता है normally we are going to focus on that. So therapeutic uses of these anticholinergic drugs, therapeutic uses मतलब ये general uses है, these are the general uses for which these anticholinergic drugs are used or we call a parasympatholytics are used. ठीक है, जिसके एग्जाम्पल अभी हमने देखे एट्रोपिन, ओमेट्रोपिन, ठीक है, बाइपेरिडीन, बेंजट्रोपिन, ऑल दिस। ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है इसके जनरल यूजेस क्या है? दे आर एक्चुअली हैविंग एन एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट। एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट होने की वजह से दे आर यूज्ड टू ट्रीट रीनल एंड biliary colic। मतलब एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट होता है नॉर्मली। एक मार्केट में जो ड्रग अवेलेबल है दैट वी कॉल डाइसाइक्लोमिन। डाइसाइक्लोमिन उसका जो ब्रांड होता है मेफ्टाल, यू माइट हियर मेफ्टाल स्वाज बोल के आता है, मेफ्टाल स्वाज, ठीक है। मेफ्टाल पी एक पेडियाट्रिक सिरप आता है, पेडियाट्रिक मेफ्टाल सी, सॉरी मेफ्टाल पी। तो दैट डजंट हैविंग दिस डाइसाइक्लोमिन। मेफ्टाल पी जो होता है वो पेडियाट्रिक सिरप होता है एंड दैट विल हैव ओनली द मेफेनामिक एसिड। मेफेनामिक एसिड, और हम लोग जो अभी बात करें मेफ्टाल पी की बात नहीं कर रहे, वी आर कॉलिंग जस्ट द मेफ्टाल स्पाज। दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट or maybe in the form of syrup, but we have to take a spaz वाला जो टर्म आता है that is used for the antispasmodic. Antispasmodic मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी स्टमक एक्ट होता है, so wherever there is a disturbances in the GI tract motility और जो contractility है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है there may be abdominal pain, we call a stomach ache. So in that case we are taking, or most of the time it may be used for the particularly in case of dysmenorrhea या menstruation जहां पर है, in that case abdominal pain जो होता है उसको रिलीज करने के लिए, to decrease the say random peristaltic movement of the ureter, that we call endometrium, wall of uterus, endometrium, उसका जो मूवमेंट होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए मे बी it may be used in a menstrual cycle also, during menstrual cycle, so that we call antispasmodic. Normally it may be used in case of stomach ache also, ठीक है, so that is called as antispasmodic. तो atropine तो normally हम लोग यहाँ पे नहीं लेते, we are taking other derivatives which are acting as a anticholinergic, antispasmodic, that we are just discuss the example. Dicyclomine is a drug or active constituent dicyclomine and which has a brand Meftal Spaz. तो ये किसका यूज हो गया। नेक्स्ट ब्रोंकियल अस्थमा में भी यूज किया जाता है, ड्यू टू द ब्रोंकियल स्पाज्म, एंटीस्पाज्मोडिक यूज किया जाएगा। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, स्पास्टिक कोलाइटिस या इजोफेगल स्पाज्म है, एंटीस्पाज्मोडिक, यहाँ पर भी उसका इफेक्ट होगा। दैट्स व्हाई वी हैड मेंशन इन जनरल वी कैन यूज इट एज एन एंटीस्पाज्मोडिक इफेक्ट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जहां पर हो रहा है या देयर मे बी अ से टेंडरनेस, वी कैन कॉल एन एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वी कॉलिंग अ लिटिल बिट ऑफ पेन while bending or while routine work, so that we call a spasm हो गया है। So in that case we are taking antispasmodic drugs. So these categories of anticholinergic drugs we can use for antispasmodic effect. Nausea, vomiting में भी use किया जाता है, but these are not a preferable drug in case of nausea, vomiting, ठीक है। Normally antihistaminic use किए जाते हैं, this is anticholinergic, and anticholinergic antihistaminic more or less थोड़ा बहुत similar उसके effect होते हैं, ठीक है। Next, these are all the in general the uses of all the anticholinergic drugs. Parkinson's में यूज किया था, Parkinson's disease, you might hear this term Parkinson's disease, जो कि acetylcholine का लेवल जहां पे बढ़ जाता है। Actually there is a say there should be a balance between the excitatory neurotransmitter and the inhibitory neurotransmitter. Excitatory neurotransmitter का example होता है acetylcholine and the inhibitory neurotransmitter का example होता है dopamine,
So if the inhibitory level of the inhibitory neurotransmitter decreases and excitatory neurotransmitter increases, it means that level of acetylcholine अगर बढ़ता है, so that leads to Parkinson's. Shivering हो जाएगा, shivering होता रहेगा. You might heard or seen the patient of the Parkinson's. Normally ये Alzheimer disease है, age related disease है, neurodegenerative disease है, जहां पर के जो है वो एसिलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है. और नॉर्मली एसिलकोलिन इज नीडेड फॉर जस्ट द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. एसिलकोलिन का नॉर्मल लेवल लगता है if you are going to move or contract or skeletal muscle, we need either due to the say we know that there is a nicotinic receptor which are associated with the skeletal muscles. Nicotinic cholinergic जो receptors होते हैं वो skeletal muscle से related होते हैं, we know very well, and that will able to coordinate the contraction of the skeletal muscles. And if there is a say for that contraction of these skeletal muscle, we need acetylcholine. एसिटिलकोलिन हमको नॉर्मल लेवल में लगता है फॉर द मूवमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल. लेकिन यही एसिटिलकोलिन अगर बढ़ जाए, इंक्रीज लेवल ऑफ द एसिटिलकोलिन, दैट लीड्स टू एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन और वी कॉल अन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन. तो अपने आप कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, अपने आप कॉन्ट्रैक्शन अगर होता है दैट लीड्स टू शिवरिंग. हाथ ऐसे हिलने लगते हैं, शिवरिंग जैसे होता है ना. सो दैट दिस इज द प्राइमरी सिम्टम इन केस ऑफ पार्किंसंस डिसीज. और पार्किंसंस डिसीज का रीजन क्या है? I'll share definitely the animation of this Parkinson's disease in Moodle, no problem. आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. So I mean to say that the Parkinson's disease is a neurodegenerative disorder, Alzheimer disease है, age related disease है, जहाँ पे एसिटिलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है. और एसिटिलकोलिन का लेवल अगर बढ़ता है इन केस, so that leads to a shivering. तो यहाँ पे कौन से ड्रग दिए जाएंगे फिर? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जो कि एसिटिलकोलिन के रिस्पॉन्स को इनहिबिट करते हैं, and they are relieving from the attack of पार्किंसंस या पार्किंसंस का जो पेशेंट होता है उसको एक्सेसिव शिवरिंग जो होगा उसको रिलीव करने के लिए वी आर गिविंग एंटीकोलिनर्जिक्स. सो दीस आर द प्राइमरी यूज ऑफ दिस ड्रग एंटीकोलिनर्जिक. जैसे मैंने एंटीस्पाज्मोडिक बोला, डेफिनेटली एंटीस्पाज्मोडिक तो है ही है, बट स्पेशली दे कैन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिसीज. ये एक एक्चुअली वन ऑफ द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ पार्किंसंस डिसीज दैट वन कैन एडवाइज और फिजिशियन कैन एडवाइज द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. सेकंड जो वे होता है पार्किंसंस डिसीज के ट्रीटमेंट का, दैट इज बाय इंक्रीजिंग द डोपामाइन लेवल. एक तो एसिटिलकोलिन का लेवल जो बड़ा है उसको कम किया जाएगा या उसको एंटागोनाइज किया जाएगा बाय दीज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. और दूसरा रीजन जो होता है डोपामाइन का लेवल कम होने का या कम होने की वजह से भी देयर मे बी अ पार्किंसंस डिसीज. तो डोपामाइन लेवल को बढ़ाया जाएगा, एसिटिलकोलिन के लेवल को कम किया जाएगा, डोपामाइन के लेवल को बढ़ाया जाएगा. डोपामाइन के लेवल को बढ़ाने के लिए समटाइम द लियोडोपा एंड कार्बिडोपा, दिस आर द कॉम्बिनेशन विल बी गिवन in case of the in order to increase the dopamine level. ये फिजियोलॉजी हो गया पार्किंसंस डिसीज का. तो उसमें से ये जो वन ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है बाय यूजिंग दिस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, वो अभी हमने जस्ट देखा दैट दीस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस. ठीक है. एंटी सेक्रेटरी इफेक्ट भी इसका है. एंटी सेक्रेटरी जहां पे सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ जाए ड्यू टू इंक्रीज या ड्यू टू द ओवरडोज, या वी कैन से दैट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग्स, इन दैट केस वी कैन यूज दिस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग व्हिच आर एक्टिंग एज एंटी सेक्रेटरी और वो सिक्रेशंस को कम कर देंगे. एंटीस्पाज्मोडिक एज वेल एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी यूज किया जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाय द ऑर्गेनोफॉस्फोरस ड्रग, ऑर्गेनोफॉस्फोरस आर द कोलिनर्जिक ड्रग्स. अगर उसको एंटागोनाइज करना है ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग को, तो दैट इज एक्चुअली द वी आर कॉलिंग एंटीडोट्स, बोल के भी यूज किया जा सकता है. दिस इज नॉट थेरेपेटिक यूज वी कैन से, बिकॉज कोई डिसीज को हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे, पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज यहाँ पे कर रहे हैं. इट मींस दैट इट इज एन एंटीडोट. तो एंटीडोट भी यूज किया जाएगा. नेक्स्ट, ड्यू टू इट्स माइड्रेटिक इफेक्ट, इट कैन बी यूज फॉर द साइक्लोपैथी. माइड्रिक एंड साइक्लोपैथिक इफेक्ट की वजह से इसको ऑप्थेल्मोस्कोपी में भी यूज किया जाता है. ऑप्थेल्मिक भी इसके यूजेस है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द थेरेपेटिक यूजेस ऑफ these cholinergic drugs. ठीक है. नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज वन ऑफ द ड्रग एट्रोपिन. ये टिपिकल एग्जांपल हम लोग देखेंगे. एट्रोपिन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एट्रोपिन. ठीक है. और इसमें अगर हम लोग इसको नंबरिंग दे दे, सो द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. या अगर देखा जाए तो इट्स अ 7 मेंबर्ड रिंग. ये 7 मेंबर्ड रिंग कैसे होता है? देखिए पोजीशन 1 यहाँ पे दिया है ये कार्बन को. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, इस तरह से नंबरिंग हो जाएगा टिल द 7. ओके. एंड 8 में बी गिवन टू द नाइट्रोजन व्हिच मे बी द पार्ट ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक रिंग. ठीक है. ये जो नाइट्रोजन है हेटेरोसाइक्लिक रिंग का पार्ट है. अगर ये जो अभी हमने नंबरिंग दिया है ये पार्ट को टू दिस पार्ट, we will see that this one is we can analogous with this part. ये वाला जो होता है ट्रोपिन रिंग के अंदर, ये जस्ट अभी हमने रिंग डिस्कस किया है. दिस वन इज डायट्रोपिन रिंग. ठीक है. ये वाला रिंग जो होता है ये होता है
we know that it's a 7 member ring. Just अभी तक हमने जो 7 member तक उसका नंबरिंग दिया था. No doubt there is a heteroatom 8, no problem, but it may be taken as a heteroatom 8. ये heteroatom लिया जाएगा, but अगर देखा जाए तो आपको यहाँ देख सकते हो आपके in this ring you can see that there is a 7 member ring. 7 member ring इसके कार्बन को एक्सटेंड हुआ है नंबरिंग 7. एंड नॉर्मली ये ट्रोपिन रिंग से आता है. ये वाला जो पार्ट जिसको हमने नंबरिंग दिया ये ट्रोपिन रिंग से आता है. ट्रोपिन which has a hydroxy group also. ठीक है. नेक्स्ट ट्रोपिक एसिड, मतलब ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कमिंग फ्रॉम ट्रोपिक एसिड. इट विल बी कम फ्रॉम ट्रोपिक एसिड. ट्रोपिक एसिड होता है इस तरह से, ये देखिए बेंजीन रिंग विद CH2COOH, ये वाला जो होता है COH ग्रुप इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो आई मीन टू से दैट देयर इज अ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ये हम लोग सिंथेसिस भी पैरेलली इसका डिस्कस कर रहे हैं. सिंथेसिस ऑफ एट्रोपिन, समझ में आ रहा है? सिंथेसिस ऑफ एट्रोपिन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एट्रोपिन. अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स. मुझे ये बोलना है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एट्रोपिन. ठीक है, ये कार्बन स्केलेटन फॉर्म में दिया है. ईच एंड एवरी कार्बन, ईच एंड एवरी ऑक्सीजन कार्बन स्केलेटन फॉर्म में, ये वाला जिसको हमने नंबरिंग दिया था. उसके बाद में एट्रोपिन का स्ट्रक्चर देखा तो ये भी हो सकता है, ये भी अगेन स्ट्रक्चर ही एट्रोपिन का, जहां पे आपको नाइट्रोजन ये दिख रहा है, नाइट्रोजन, एंड इट विल बी द 6-7 मेंबर रिंग. ये वाला 7 मेंबर रिंग रहेगा जो कि कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में, बोट एंड चेयर कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में ये दिया गया है. नो प्रॉब्लम, बट सिंपल वे टू राइट दिस स्ट्रक्चर इज दिस वन. ओके, देन इसका अगर स्ट्रक्चर बात करते हैं हम लोग एट्रोपिन के स्ट्रक्चर की, तो इसमें दो पार्ट होते हैं. वन पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द एट्रोपिन, सॉरी ट्रोपिन रिंग, एंड वन सेकंड पार्ट इज कमिंग फ्रॉम ट्रोपिक एसिड. ठीक है, ये जो गिवन स्ट्रक्चर है वो ये भी अगर एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है देखा जाए तो. एंड इफ यू आर गोइंग टू सी द सिंथेसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट विल बी फॉर्म बाय एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. एट्रोपिन इज सिंथेसाइज्ड बाय एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की अगर हम लोग if you are talking in general about the esterification reaction, so there will be two components required for the formation of ester. One will be the acid and second will be the alcohol. तो acid जो पार्ट रहेगा वो ट्रोपिक एसिड रहेगा, and alcohol जो पार्ट रहेगा वो ट्रोपिन रहेगा. समझ में आ रहा है? When acid react with alcohol, it will give you the ester. This is the general reaction. लेकिन same है general reaction और that we call esterification reaction. तो यहाँ पर जो है synthesis of atropine हो रहा है वो भी esterification reaction से ही होगा. It means that one part will be the alcohol, सेकेंड वन विल बी द एसिड. तो ट्रोपिक एसिड है, ये एसिड पार्ट वाला है, एसिड वाला पार्ट है, और ट्रोपिन जो है ये अल्कोहल वाला पार्ट है. OH ग्रुप इज देयर, यू कैन सी इन ट्रोपिन. ठीक है, तो व्हेन ट्रोपिन रिएक्ट विद ट्रोपिक एसिड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एट्रोपिन एंड व्हिच इज द ईस्टर. ठीक है, ये ईस्टर है. एट्रोपिन इज द ईस्टर ऑफ, वी कैन से द ईस्टर ऑफ ट्रोपिन, ईस्टर ऑफ ट्रोपिक एसिड. वी कैन से नॉर्मली हम लोग ईस्टर ऑफ एसिड बोलते हैं, तो ईस्टर ऑफ ट्रोपिक एसिड. तो दिस इज द एट्रोपिन, स्ट्रक्चर ऑफ एट्रोपिन. अभी केमिकल नेम के झंझट में मत जाओ, मुझे लगता है कि बिकॉज इट इज एन कॉम्प्लिकेटेड वन एंड वी आर कॉलिंग अ ट्रोपेन 3 ट्रोपेट, इस तरह से है. देखिए, तो यू डोंट हैव टू बी गो इन केमिकल नेम के चक्कर में ज्यादा जाओ मत. मुझे ये बोलना है अगर आपने स्ट्रक्चर भी लर्न कर लिया एट्रोपिन का स्ट्रक्चर भी तो काफी है, बिकॉज दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन. जैसे मैंने बोला कि ईस्टर लिंकेज जो फॉर्म हो रहा है, सो यहाँ से हम उसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट में. ये वाला पार्ट जो होता है ट्रोपिन से आता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो ट्रोपिक एसिड से आता है. यू सी इन दिस फिगर, दिस पार्ट इज कमिंग फ्रॉम ट्रोपिन एंड दिस पार्ट जो होता है, दिस एसिड वाला पार्ट इट कमिंग फ्रॉम ट्रोपिक एसिड. इस तरह से जो रहेगा वो इसका जो रहेगा वो स्ट्रक्चरल फीचर रहेगा, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ दिस एट्रोपिन. ओके, केमिकल नेम मत देखिए. Yeah, it is a complicated one. Chemical name is complicated one. That's why we are not being focusing on this chemical name of this atropine. When we are going to see the chemical property or physical property in acidic or alkaline medium, it get hydrolyzed to give the tropine and tropic acid. Definitely, अगर इसका hydrolysis हुआ, ये जो ester बना है atropine sulfate, we are using a salt. तो atropine का अगर suppose atropine is chemically ester, और अगर suppose इसका hydrolysis करता है तो reverse reaction होगा. Reverse as a hydrolysis we are getting this product tropic acid and tropine. जिसका वो बना रहेगा उसका वो प्रोडक्ट हमको फाइनली मिल जाएंगे. मतलब जो हम यहाँ पे तो प्रिकर्सर इसको ले रहे हैं, प्रिकर्सर से हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ईस्टर एट्रोपिन. एट्रोपिन का हाइड्रोलिसिस होगा तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग दीस टू प्रोडक्ट दैट वी कॉल अ ट्रोपिक एसिड एंड एट्रोपिन. जिसका वो बना रहेगा वही हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट उसके मिलेंगे, दैट इज ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ द एट्रोपिन. समझ में आया? So this is the chemical property of the atropine. Atropine is also called as plus minus hyoscyamine. Hyoscyamine जो है वो सिनोनिम है एट्रोपिन का. प्लस माइनस इंडिकेट इट इज एन रसमिक मिक्सचर. प्लस माइनस जो साइन आ रहा है इसका मतलब इंडिकेट करता है रसमिक मिक्सचर. क्योंकि अगर सपोज हम लोग प्लस साइन लिखते हैं कोई ड्रग के सामने, सो इट विल बी अ
डेक्स्ट्रो रोटरी, डेक्स्ट्रो रोटरी फॉर्म होता है, डेक्स्ट्रो रोटरी, डेक्स्ट्रो रोटरी मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ठीक है। और अगर सपोज हम लोग माइनस लिखते हैं कोई ड्रग के सामने तो इट विल बी द लियो फॉर्म या लियो रोटरी रहेगा, which will rotate the plane polarized light toward the left, we call leo rotary। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म जो होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी आपको पता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो कंपाउंड शो करते हैं वी कॉल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो आइदर इट मे बी लियो और डेक्स्ट्रो, और अगर सपोज लियो है तो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड वो रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर डेक्स्ट्रो है तो टुवर्ड राइट साइड वो रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके हिसाब से हम लोग उसको केमिकल नेम के हिसाब से, या अगर हम लोग पेपर पे इंडिकेट कर रहे हैं कि वो लियो है या डेक्स्ट्रो है तो प्लस माइनस साइन के फॉर्म में हम लोग उसको डिनोट करते हैं। Now here you can see that there is a both the signs indicate or their हाइड्रोसामाइन के सामने दोनों भी साइन है, प्लस और माइनस दोनों भी साइन है, इसका मतलब वो लियो भी है डेक्स्ट्रो भी है। We can say it's an equipolar mixture of the लियो and डेक्स्ट्रो फॉर्म, इक्वल क्वांटिटी का मिक्सचर होता है। इक्विपोलर मिक्सचर मतलब के, इक्विमोलर मतलब के सेम क्वांटिटी का मिक्सचर रहेगा लियो फॉर्म और डेक्स्ट्रो फॉर्म का, and that's why we're writing both the way plus and minus, and it is the neutral, it is inactive, optically inactive। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? क्योंकि प्लस माइनस होने की वजह से, दोनों का इक्वल मिक्सचर होने की वजह से लेफ्ट राइट का रोटेशन या लेफ्ट साइड का रोटेशन और राइट साइड का रोटेशन कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिग्नल पे खड़े हो, सिग्नल पे खड़े हो और एक आपको इंडिकेटर ग्लो कर रहा है कि मतलब आपको सिग्नल मिल रहा है कि लेफ्ट जाओ, दूसरा सिग्नल मिल रहा है राइट जाओ, तो आप यू विल गेट कंफ्यूज, और कंफ्यूज मतलब फिर आप रुक जाओगे कि हम अभी जाना किधर है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई will stay over there, मतलब पर्सन थोड़ी देर के लिए तो इनएक्टिव हो जाएगा। इन दैट केस सेम एग्जांपल यहाँ पे रहेगा, अगर वो डेक्स्ट्रो रहा तो राइट की तरफ रोटेट करता है, और अगर सपोज लियो रहा तो लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। अगर दोनों इक्वल फॉर्म में रहे तो दोनों का रोटेशन कैंसिल हो जाएगा, एंड देयर इज नो रोटेशन। और नो रोटेशन मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। रोटेशन होता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाता है, रोटेशन नहीं होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है? तो ये प्लस माइनस मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, और ऐसे मिक्सचर को जिसमें लियो और डेक्स्ट्रो इक्वल फॉर्म में होते वी कॉल रेसिमिक मिक्सचर, वी कॉल रेसिमिक मिक्सचर। तो एट्रोपिन ये रेसिमिक मिक्सचर रहेगा, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। अगर अलग अलग फॉर्म में है, सिंगल फॉर्म में तो एक्टिव है, मिक्स है तो इनएक्टिव है। समझ में आ रहा है? लियो डेक्स्ट्रो मिक्स है तो इनएक्टिव है, लियो ओनली प्रेजेंट है तो एक्टिव रहेगा, ओनली डेक्स्ट्रो प्रेजेंट है तो एक्टिव रहेगा, लेकिन दोनों इक्वल है तो will cancel each other, rotation of each other, and there is no rotation, no rotation मतलब optically inactive, तो we call a racemic mixture। So it is an alkaloid, अगर natural source देखा जाए एट्रोपिन का, it is an alkaloid obtained from the mainly from Hyoscyamus meticus, which is extracted from Atropa belladonna। Atropa belladonna आपने सुना होगा, belladonna leaves, तो वहां से हमको मिलता है Atropa belladonna से ये Hyoscyamus। Hyoscyamus is one of the, या Hyosamine is one of the synonym for atropine। Atropa belladonna से atropine हमको मिलेगा, which is an anticholinergic drug। नेक्स्ट, ड्यूरिंग आइसोलेशन लियो फॉर्म जो होता है हाइड्रोसामाइन का अंडरगो रेसिमाइजेशन टू गिव द एट्रोपिन। एट्रोपिन इज द रेसिमिक मिक्सचर, as I told, it is an equipolar mixture of लियो and डेक्स्ट्रो form, and that's why it is optically inactive, optically inactive, but official limit will set in such a way that it shows the लियो rotation due to the addition of the small quantity of the लियो हाइड्रोसामाइन। मतलब लियो फॉर्म नॉर्मली जो एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है लियो फॉर्म होता है, कोई भी ड्रग का अगर आप देखो तो वहां पे आपको लियो फॉर्म जो रहेगा वो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो ही लियो डेक्स्ट्रो का सवाल आता है, और अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो उसमें लियो फॉर्म प्रीफर किया जाता है। या लियो फॉर्म का जो प्रोबेबिलिटी जो होता है एक्टिविटी शो करने का, थेरेपेटिक एक्टिविटी में जो रोल होता है लियो फॉर्म का वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डेक्स्ट्रो फॉर्म। दैट्स व्हाई जैसे आपको देखो कि सिट्रिजिन का, लियो सिट्रिजिन आप फॉर्मुलेशन देखते हो, लियो सिट्रिजिन अगेन वन ऑफ द ड्रग, लियो मतलब क्या, वो लियो फॉर्म रहेगा, सिट्रिजिन का लियो फॉर्म रहेगा, दैट वी कॉल लियो सिट्रिजिन। नाउअडेज इट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट आल्सो लियो सिट्रिजिन। तो लियो फॉर्म ज्यादा एक्टिव होता है या मोस्ट प्रेफरेबली यूज किया जाता है फॉर थेरेपेटिक यूजेस। दैट्स व्हाई यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एट्रोपिन का रेसिमिक मिक्सचर है तो उसमें एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लियो फॉर्म थोड़ा मिक्स किया जाता है, थोड़ा सो दैट द लियो फॉर्म का प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो वो लियो माइनस हाइड्रोसामाइन या माइनस जो एट्रोपिन शो करेगा, एंड दैट बिकम और पर्पस भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। इट ऑकर एज ए कलरलेस क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये सब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है। नेक्स्ट, crystalline powder रहेगा, odorless रहेगा, has a bitter taste। We are talking about the atropine sulfate and atropine। It is sparingly soluble in water but freely soluble in chloroform। Water solubility कम है और chloroform में solubility ज्यादा है। Its official salt that is called sulfate, atropine sulfate। मतलब official salt कौन सा रहेगा उसका, sulfate form रहेगा, that we call atropine sulfate, which contains 1 molecules of water of crystallization and which is very soluble in water। When it is treated with the fuming nitric acid, a mixture is evaporated to dryness on water bath, it will use the yellow residue। ये इसका chemical property हो गया।
स्टेबिलिटी की अगर बात करते हो, एट्रोपिन सल्फेट जो है वो इफ्लोरेसेंस शो करता है। इफ्लोरेसेंस मतलब पफी फॉर्म उसका बन जाता है। पफी मतलब जैसे फोम होता है ना, जैसे स्पॉन्ज जैसे होता है स्पॉन्ज, या बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद, जैसे बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद में जो ब्रेड का जो कंसिस्टेंसी बन जाता है, ब्रेड का हो गया या टोस्ट का जो होता है पफी जिसको बोलेंगे, या परफोरस या पोरस, इस तरह का जो है वो मास बनता है, तो दैट वी कॉल इफर्वेसेंस, सॉरी इफ्लोरेसेंस, दैट वी कॉल इफ्लोरेसेंस। मतलब वो स्वॉलन हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, और वहां पे पफी मास या जैसे ब्रेड में होता है उस तरह का जो है वो स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर जो है उस तरह का फॉर्म हो जाएगा। इन अ ड्राई एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इसका रीजन होता है कि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, and due to presence of this water of crystallization it will flow the efflorescence, atropine sulfate showing the efflorescence, that is due to presence of water of crystallization। water of crystallization मतलब ये इनबिल्ट वाटर रहेगा उसके अंदर। water of crystallization मतलब कि जो क्रिस्टल्स बनते हैं उसमें वाटर ऑलरेडी लिंक होता है, दैट वी कॉल लिंक वाटर रहेगा, ये फ्री वाटर नहीं रहेगा, इट्स अ लिंक वाटर वी कॉल associated with the crystal form, that we call a water of crystallization। तो वो water of crystallization present होने की वजह से there is a formation of the efflorescence, puffy mass उसका बन जाता है। So that is a part of stability storage, so it should be stored in tightly closed, that is उसका puffy mass ना बने due to presence of water of crystallization when it come in contact with the dry air, इसलिए इसको prevent किया जाएगा, किया जाएगा for directly exposing to the air, या from the directly exposing to the air, ड्राई एयर को एक्सपोज नहीं किया जाए क्योंकि वो इन्फ्लोरेसेंस शो करता है। इट स्लोली अफेक्टेड बाय लाइट आल्सो, हेंस इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड एंड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। यूजेस अगर देखा जाए तो इस सीएनएस के थ्रू एक्ट करता है। एट्रोपिन सल्फेट यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसंस व्हिच पैरालाइज द एजिटेशंस, या जो वाइब्रेशंस होते हैं या शिवरिंग होता है उसको पैरालिसिस या एजिटेशंस होते हैं उसको ट्रीट करेगा। रिड्यूस द मस्कुलर रिजिडिटी एंड सलाइवेशन भी कम कर देगा, एंड एज एन एंटीस्पाज्मोटिक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट इन स्मॉल डोजेस इट मे बी यूज्ड टू स्टिमुलेट द सीएनएस आल्सो। ठीक है, बट नेक्स्ट ड्यू टू द एंटी-मस्करिनिक एक्टिविटी, पेरिफेरल एक्शन जो इसका होता है, माइड्रेटिक इफेक्ट ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाएगा टू डायरेक्ट द पिपल्स एज एंटीस्पाज्मोटिक। एंटीस्पाज्मोटिक के एग्जांपल तो ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रीनल एंड बिलियरी कोलिक। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम करने के लिए, स्पाज्म कम करने के लिए, ब्रोंकल स्पाज्म कम करने के लिए ये ड्रग यूज किए जा सकते हैं। फॉर द anesthetic pre-medication it can be used because it may be inhibit or will depress the CNS in larger dose। अभी यहाँ पे देखो कि in smaller dose it stimulates the CNS, larger dose it will depress the CNS, तो pre-anesthetic medication में इसको यूज कर सकते हैं। inhibit the excessive salivation also, bronchial spasm, ये जो complications होते हैं at the time of inducing the general anesthesia उसको prevent करने के लिए pre-anesthetic medication हम लोग यहाँ पे anticholinergic drugs लेते हैं। ठीक है, मतलब वो सिक्रेशन वगैरह सलाइवरी सिक्रेशन कम कर देगा, ब्रोंकियल सिक्रेशंस कम कर देगा, तो दैट इज make ease to induce the general anesthesia, that's why we are saying that it may be used for the pre anesthetic medication। next fourth use अगर देखा तो ट्रीटमेंट ऑफ द सिलोरिया, वी कॉल सिक्रेशन और सलाइवेशन सिलोरिया, सिक्रेशन जहां पे बढ़ जाता है, एक्सेसिव सलाइवेशन। अगर सपोज फॉर एग्जांपल सलाइवेशन अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, आपको बात करना भी नहीं आएगा, देयर इज अनेबल टू स्पीक ड्यू टू द एक्सेसिव सलाइवेशन। एक्यूट कोरिजा रिनिटिस है, ये एलर्जिक रिएक्शंस के एंटी एलर्जिक इसको यूज किया जा सकता है, एंटी सिक्रेटरी इसको यूज किया जा सकता है। दीस आर द यूजेस ऑफ दिस एट्रोपिन। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग ऑफ द ऑर्गेनिक फास्फोरस, ये हमने जनरल यूजेस में भी देखा है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनिक फास्फोरस मतलब इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उससे अगर पॉइजनिंग हो जाए उसको एंटागोनाइज करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं दिस एट्रोपिन सल्फेट टू एंटागोनाइज एज एंटीकोलिनर्जिक, बिकॉज ये जो होते हैं ऑर्गेनिक फास्फोरस ये कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स से पॉइजनिंग हुई तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इंसेक्टिसाइड, ऑर्गेनोफॉस्फोरस नॉर्मली यूज एज इंसेक्टिसाइड्स, इसलिए मैंने बोला कि थेरेपेटिक यूजेस इसका नहीं रहेगा। पॉइजन्स होते हैं इंसेक्टिसाइड्स वी आर यूजिंग टू किल द इंसेक्ट्स। ऑर्गेनोफॉस्फोरस तो नॉर्मली जो रहेगा दिस एट्रोपिन वी कैन यूज एज एंटीडोट्स। नेक्स्ट इन एडजुवेंट मतलब इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर, उसमें भी यूज किया, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर एसिटिलकोलिन जो है वो सिक्रेशन बढ़ाता है गैस्ट्रिक एसिड का, यू नो वेरी वेल, कोलिजिक रिसेप्टर गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स पे जो होते हैं, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के ऊपर कोलिजिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अगर एसिलकोलिन अगर बाइंड होता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल व्हिच इंड्यूसेस द सिक्रेशन ऑफ द एचसीएल, एचसीएल का सिक्रेशन बढ़ाता है जो कि स्टमक में सिक्रेट होगा एचसीएल। अगर एचसीएल ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन एंड देन पेप्सिन विल कॉज द डियोडेनल अल्सर और पेप्टिक अल्सर। तो यहाँ पे हमारा जो एक्शन रहेगा इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर,
एज अ एंटीकोलिनर्जिक, मतलब ये जो है एट्रोपिन क्या करेगा, एज अ एंटीकोलिनर्जिक है तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ जाकर के बाइंड करेगा, एसिलकोलिन को बाइंड नहीं होने देगा। द रिसेप्टर लोकेटेड ऑन गैस्ट्रिक पैराइटल सेल। तो एसिलकोलिन जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करने वाला था, वो यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट नहीं होगा। मतलब एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एचसीएल कैन बी प्रिवेंटेड इन स्टमक एंड दैट लीड्स टू अ डिक्रीज द चांसेस ऑफ दी डियोडिनल अल्सर और पेप्टिक अल्सर। समझ में आ रहा है? एसिलकोलिन बढ़ाता है सिक्रीशन ऑफ एचसीएल, तो ये है हमारे जो ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं वो एंटीकोलिनर्जिक है। तो एसिलकोलिन का कोई एक्शन को इनहिबिट करेंगे by interacting with the receptor, and they are thereby decreasing the HCl secretion in stomach, and that will be helpful for recovery of the ulcer also, क्योंकि ऑलरेडी अगर अल्सर हुआ है उसमें अगर और HCl सिक्रेट हो रहा है तो इन दैट केस देयर इज एसिडिटी एंड पेप्सिन विल गेट एक्टिवेटेड, पेप्सिन और जाके डैमेज करेगा जीआई म्यूकोजा को या स्टमक के म्यूकोजा को, एंड दैट लीड्स टू अ पेप्टिक अल्सर, प्रोग्रेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मली हम लोग एंटीस्पाज्मोडिक यूज करते हैं, ठीक है, एंटीस्पाज्मोडिक यूज करते हैं, एंटी सिक्रेटरी या वी आर कॉलिंग एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डियोडिनल और पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट विद द मॉर्फिन, ये उसका यूज, ये तो एक्चुअली उसका वी कैन से द मिसलेनियस यूजेस है। मॉर्फिन के साथ वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, इन स्मॉलर डोजेज विल प्रिवेंट द एक्सेसिव पेरिस्टाल्टिक आल्सो, कोलिक पेन रिड्यूस करेगा, इरिटेबिलिटी इरिटेंट परगेटिव के केस में जो होता है कोलिक पेन, उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स ले सकते हैं। एट्रोपिन आई ड्रॉप, एट्रोपिन ऑइंटमेंट, एट्रोपिन सल्फेट टैबलेट, एट्रोपिन, ये सब उसके फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं। एंड यूमाइड्रीन इज द ब्रांड अवेलेबल फॉर दिस एट्रोपिन, बट नॉर्मली इसका जो बहुत कम यूज होता है बिकॉज डायरेक्टली इट गोइंग टू बी इंटरेक्ट विद, ये मिक्स एक्टिंग एंटागोनिस्ट है, will interacting with the drugs, that is why it is we can say that it is a less popularly used, we can say that less preferably used, we can say that ये सारी चीजें इसमें रहेगी, ठीक है। तो जितना, हाँ, जितना पार्ट इंपॉर्टेंट जो